अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video, we were discussing about the lesson number 3, Chitral Valley. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is Chitral Valley. Chitral is one of the mountain regions of Pakistan lying in the extreme north. Its total area is 14,800 km and 90% area is under mountains. The highest and most dense section of Hindu Kush lies within the borders of Chitral. The Chitral Valley, located in the northern region of Pakistan, is one of the most remarkable places in the world when it comes to natural scenic beauty. Its pictures, mountains, uh, sulfur springs, juniper forest, friendly people, and rivers streaming with the famous troutfish are truly splendid. Chitral is also the most peaceful region of Pakistan. Its culture is unique. There are two racial groups in Chitral. One is Kailash, who are reported to be the descendants of Alexander the Great. The Kailash are now only about 3,000 people and live in the southwest valley of Chitral. They have their unique culture with three main festivals a year and a major source of tourist attraction. They live peacefully with their neighbors. They have uh, who who outnumber them. Their ways of life are quite interesting. The other group living their class neighbor in a state of ideal friendship or harmony is called the Kho, who are reputed for their culture and peaceful loving nature and integrity. British and Chitral writers have written many books in English or Kailash culture as well as on Chitral as a whole, and these books are available in major libraries, in the markets, and as well as on the net. Researcher on the history, origin, and culture of the Kailash community of Chitral is still in progress. The Chitral Valley is situated amidst of the mighty mountain of Hindu Kush range. This mountain range is 322 km long. The local language spoken in the Chitral Valley is Khowar language. Urdu, the national language of Pakistan, is also understood. The people of Kailash use their own language called the Kailashi language. The people of Chitral Valley mostly wear shalwar kameez, which is the national dress of Pakistan. Women wear dupattas and shalwar shawls along with shalwar kameez. The most popular headdress of the Chitral men is the woolen traditional pakol. In winter, the men wear long baggy coats having long sleeves known as the shuka. These coats are also made of wool. The traditional sports of Chitral is polo. World's highest polo ground, Shandur Polo Ground, is also present in this area, where the Shandur Polo Ground festival takes place. So student, this is all about the brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is about the vocabulary. Some meanings are given below in column A. Reading the lesson and find out words which have the same meaning. Write them in the column B. नीचे कॉलम ए में कुछ मानी दिए गए हैं, सबक पढ़ें और उनके मुतरादिफ अल्फाज तलाश करें और उनको कॉलम बी में दर्ज करें. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, लो एरिया बिटवीन हिल्स विद स्ट्रीम्स और रिवर. पहाड़ों के दरमियान नशेबी इलाका जिसके अंदर नदी भी हो या दरिया भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वैली कहते हैं. तो यहाँ पे इसके सामने आप लिख देंगे वैली.
ठीक है। सेकेंड वन, हैविंग आ लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ को पसंद करना, तो इसको आप क्या मानी देंगे, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फॉन्ड, FOND, फॉन्ड। थर्ड वन, क्विक एंड नॉइजी मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़, तेज़ और शोर शराबे वाली हरकत को हम क्या कहते हैं, रश, RUSH, रश। फोर्थ वन, पर्सनस ट्रैवलिंग फॉर प्लेयर, ऐसे लोग जो कि लुत्फ अंदोज होने के लिए सफ़र करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, विजिटर्स कहते हैं, ठीक है, या ट्रैवलर्स कहते हैं। फिफ्थ वन, स्मॉल राउंड पीस ऑफ ग्लास, स्टोन एक्सेट्रा पार्च्ड फॉर थ्रेडिंग विद अदर्स, धागे में परोने के लिए शीशे के पत्थर के कुर्रानुमा टुकड़े जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बीड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीड्स लिखेंगे। नेक्स्ट वन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, इसके अंदर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज चित्राल वैली सिचुएटेड, सो द आंसर इज चित्राल वैली इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, चित्राल वैली पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हेड ड्रेस ऑफ द कैलाश वुमेन, सो द आंसर इज दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स, ख़वातीन के सर का लिबास कौन सा होता है, तो आंसर है इसका, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बटनों, घुंघों और मोतियों से सजा हुआ चोगा पहनती हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन चित्राल वैली, सियाहों के लिए वादी चित्राल में असल कशिश किस चीज़ में है, सो द आंसर इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली, वादी चित्राल में कैलाश के लोगों की सकाफत और रवायत सियाहों के लिए असल कशिश की वजह है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश, हम चित्राल के लोगों को कैलाश क्यों कहते हैं, सो द आंसर इज दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, कैलाश मीन्स ब्लैक, दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेस, वादी चित्राल के लोग स्याह रंग का लंबा चोगा पहनते हैं, कैलाश का मतलब है स्याह, स्याह लिबासों के नाम पर उन्हें कैलाश कहा जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल, आप कैलाश के लोगों की कौन सी बात को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सो द आंसर इज़ आई लाइक कैलाश पीपल्स सिंपल लाइफ द मोस्ट, मुझे कैलाश के लोगों की सादा ज़िंदगी सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और यहाँ पर MCQs टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से चूज़ करना है। फर्स्ट वन, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द डैश, पीपल, टूरिस्ट, चिल्ड्रन या वर्कर, सो द करेक्ट आंसर इज बी, टूरिस्ट। नेक्स्ट सेकेंड वन, द कैलाश वुमेन वेयर डैश ड्रेस, कैलाश की जो ख़वातीन हैं वो कौन सा ड्रेस पहनती हैं, रेड, वाइट, ब्लैक या येलो, सो द करेक्ट आंसर इज सी, ब्लैक। थर्ड वन, द कैलाश पीपल परफॉर्म देयर स्पेशल डैश एट डिफरेंट फेस्टिवल, हाँ जी, कैलाश के लोग जो उनके फेस्टिवल्स हैं उन पे क्या चीज़ पेश करते हैं, फीट्स, ट्रिक्स, डांसेस या परफॉर्मेंसेस, सो द करेक्ट आंसर इज सी, डांसेस। फोर्थ वन, द कैलाश पीपल लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ डैश एंड मड, कैलाश के लोग जो सादा घरों में रहते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ब्रिक्स के, स्टोन्स के, सीमेंट या वुड, सो द करेक्ट आंसर इज बी, स्टोन्स। नेक्स्ट ग्रामर, डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल द कैलाश पीपल, द सन एक्सेट्रा। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इसे किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के साथ लगाते हैं, जैसा कि कैलाश के लोग या फिर सूरज। क्वेश्चन ए रिलेटेड टू द ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द एज नीडेड, इन ब्लैंक्स को फिल करना है ए, एन और द के ज़रिए जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। फर्स्ट वन, वी सी डैश मून एट नाइट, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बेटा, द लगाएंगे, क्योंकि द जो है मून स्पेशल या पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द मून। सेकेंड वन,
मिस साइमा पुट्स डैश आइस क्यूब इन टू हर लेमनेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, आइस है ना, आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। थर्ड वन, दिस इज डैश पीकॉक हैज़ कलरफुल फिदर्स। यहाँ पे बेटा फर्स्ट वन दिस इज अ पीकॉक, ठीक है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, द पीकॉक, यहाँ पे आएगा द पीकॉक हैज़ कलरफुल फिदर्स। लास्ट वन, गिव मी डैश इन्वेलप, आई विल पुट माई लेटर इन इन्वेलप। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन इन्वेलप आएगा, ठीक है, इन्वेलप क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, और ई वोवल साउंड देता है, तो यहाँ पर एन इन्वेलप आएगा और यहाँ पे इन द इन्वेलप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन। All of the words that are part of greeting are usually capitalized. Remember to capitalize the first letter of the first word in the closing. ऐसे तमाम अल्फाज जो अदाब व तस्लीमात का हिस्सा होते हैं आम तौर पर बड़े हरूफ से शुरू किए जाते हैं। इख्तितामिये के पहले लफ्ज़ के पहले हर्फ को बड़ा लिखना याद रखें, यानी कि लाजमी लिखना होता है। बी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पंक्चुएशन, कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हमने पंक्चुएट करना है। यहाँ से बेटा इट का आई कैपिटल आएगा, इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सा, आई का यहाँ से आई कैपिटल आएगा, सा यू लास्ट, लास्ट के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई जो है कैपिटल आ जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, अगो के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगो के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा और यू का जो वाई है वो कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है और जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम वर्ड जो है कैपिटल लिखते हैं। तो अगो के बाद जब हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे तो यू क्या आ जाएगा, वाई कैपिटल। यू वांट टू नो अबाउट माय समर वेकेशन, वेकेशन के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, हमारी बात ख़त्म हो चुकी है तो यहाँ पे वेकेशन के बाद फुल स्टॉप आएगा और उसी तरह यू जो का जो वाई है वो कैपिटल आ जाएगा। यू नो माई समर हैज़ बीन ग्रेट, ग्रेट के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोनाउंसिएशन के अदा कैसे किया जाता है तलफ़ुज़ को। सी क्वेश्चन, इफ़ the comes before a word that begins with a consonant, we pronounce it as the sound in thus. If the comes before a word that begins with a vowel, we pronounce it as a sound like this. English, अगर द का ऐसे लफ्ज़ से पहले आ जाए जो कि कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट बेटा कौन से होते हैं, जो कि वोवल्स के अलावा जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर आ जाए तो हम उसको क्या कैसे अदा करेंगे, दा बोलेंगे, ठीक है। और अगर वोवल से पहले आ जाए द तो हम उसको दी बोलेंगे, ठीक है, THE को क्या बोलेंगे, दी। अब यहाँ पर कुछ बताई गई है, सरगर्मी दी गई है, हम इसको देखते हैं। द फॉलोइंग नाउन स्टार्ट विद अ स्पोकन कॉन्सोनेंट। यहाँ पे बेटा कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले जो वर्ड आएगा उसको हम कैसे बोलेंगे, उसे हम दा बोलेंगे, द गर्ल, द बुक, द स्कूल, द यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वॉवल्स हैं, जैसे कि इंग्लिश, ऐसे, ओल्ड और अंकल। तो इससे पहले जो वर्ड होंगे उनको हम दी बोलेंगे, दी इंग्लिश, दी ऐसे, दी इजी बुक, दी ओल्ड स्कूल, दी अंकल, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन, ई क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। अपने दोस्त को अपने स्कूल में मसरूफियात के बारे में आपने ख़त लिखना है। सो एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी, फिर उसके बाद हमने डेट लिखनी है और लास्ट फिर माय डियर फ्रेंड, और नीचे से अपना लेटर का जो वो स्टार्ट करना है। In your previous letter, you asked me about my activities at my new school. You will be glad to know that I am enjoying my school life very much. All my school, I always remain busy with different curricular and no co-curricular activities. I have made a few friends with whom I chat for some time at break. I also take part in games
debates, and other functions held at my school very actively. I hope that all these details about my school life will please you. Pay my salam to all at home, your friend XYZ। बेटा इस लेटर के अंदर बता रहे हैं अपनी मसरूफियात के बारे में कि मैंने जब से स्कूल में यहाँ पे मतलब कि दाखिला लिया, मैं बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले रही हूँ। मैं अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करती हूँ। रोज़ाना जो है मैं करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उन तमाम में निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हूँ बढ़ चढ़ कर। मैंने कुछ दोस्त भी मेरे बने हुए हैं जिनसे मैं ब्रेक के टाइम बातें करती हूँ। गेम्स में, डिबेट्स में यानी कि तकारीर वगैरह में या फंक्शंस वगैरह में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, और मुझे यकीन है कि आप इस तमाम चीज़ों को पढ़कर खुश होंगी। नेक्स्ट F1 F क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एरर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देन रीराइट द पैराग्राफ करेक्टली। बेटा वो कह रहे हैं कि आप मुदर्जा से पैराग्राफ को पढ़ें, फ़ाइल और फ़ेल के दरमियान में मुताबिकत में गलतियों की निशानदही करके पैराग्राफ को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो हम इसके अंदर गलतियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। दे लिव्स इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड मड। द कैलाश इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेज एट डिफरेंट फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको लिखें ऐसे, द कैलाश पीपल आर, ठीक है, कैलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली, ठीक है। दे लीड अ वेरी, लीड की जगह पे लिव लिख दें। दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। इसके बाद द कैलाशी आर फाउंड ऑफ म्यूज़िक, यहाँ पे आर आएगा। द कैलाशी आर फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। दे द कैलाश इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। दे परफॉर्म देयर, यहाँ पे परफॉर्म्स नहीं परफॉर्म आएगा, ठीक है। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स। यहाँ पर लिव आएगा, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पे एस हटा के सिर्फ परफॉर्म आएगा और यहाँ पे आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। हाँ जी, टॉपिक है द पीपल ऑफ कैलाश वैली। इसके ऊपर हमने क्या करना है, 50 to 60 वर्ड्स का एक टॉपिक पैराग्राफ लिखना है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, वेयर इज कैलाश वैली, कैलाश वैली कहाँ है उसके बारे में। हाउ डू कैलाश पीपल लिव, कैलाश के लोग कहाँ रहते हैं। हाउ डू दे ड्रेसअप, वो कैसा ड्रेस पहनते हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ पर रहते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ डू दे लाइक, वो क्या करना, किन सरगर्मियों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। हाउ डू दे बिहेव विद टूरिस्ट, वो सयाहों के साथ कैसा सलूक करते हैं। सो इसके बारे में पैराग्राफ बेटा कुछ ऐसा होगा, कैलाश वैली इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। द कैलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। दे लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड मड। द कैलाश वुमेन वेयर a large head dress decorated with different buttons, shells and beads. The Kailash are fond of music and dance. They are friendly with tourists. तो इस तरह ये पूरा पैराग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है बेटा ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इसके अंदर दो लोगों में कम्युनिकेशन करना सिखाई गई है कि कैसे बात करते हैं दो लोग अगर आपस में बात करें। हिरा और आमना दो करेक्टर हैं। फर्स्ट वन हिरा आमना से बात करिए। हेलो आमना, हाउ आर यू। हेलो आमना, तुम कैसी हो। आमना, हेलो हिरा, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। हेलो हिरा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुम कैसी हो। हिरा, आई एम ऑल्सो फाइन, डू यू हैव नौशीन्स नंबर, मैं भी ठीक हूँ, क्या तुम्हारे पास नौशीन का नंबर है। तो आमना कह रही है येस आई डू, जी हाँ मेरे पास है। तो हिरा ने क्या कहा, कैन यू गिव इट टू मी प्लीज़, क्या आप मुझे दे सकती हैं उसका नंबर। तो आमना ने उसको नंबर बताया। हिरा, थैंक यू, और आमना ने आगे से क्या कहा, वेलकम। तो बेटा ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि आपको सिखाई जा रही हैं कि दो लोग अगर आपस में बात करें तो सबसे पहले सलाम करेंगे, खैरियत दरियाफ्त करेंगे, उसके बाद अपना काम बताएंगे और फिर अगर काम हो जाए तो लास्ट में थैंक यू और वेलकम कहेंगे। लास्ट वन इज़ ग्लॉसरी। ग्लॉसरी के अंदर बेटा डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं चैप्टर के उनको लिया गया है। हम पहले भी इसको कर चुके हैं जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अट्रैक्शन यानी कि कशिश, समथिंग और समवन दैट अट्रैक्ट्स, बीड्स मोती,
small and usually round balls made of glass or stone, charming, पुरकशिश, delightful or pleasing, decorated, सजा हुआ, something beautiful with ornament, enchant, to charm or delight, festival, त्यौहार, a day or period of celebration, especially one kept traditionally, performance, परफॉर्मेंस होता है कारकर्दगी, द परफॉर्मिंग ऑफ डांस, piece of music etc. before an audience, thickly populated with crowded, thickly का क्या होगा, populated होगा या फिर crowded population, tourist सयाह, someone who travels for pleasure, vacation a holiday. सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके अंदर हमने जितनी भी ग्रामर पोर्शन किया है, जितने भी हमने इसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपकी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।